तो ये होती है फ्लेक्शन। तो अपने हाथ पे ऊपर आप कार्पस पे हाथ रख के दे दीजिए। मेन तो मूवमेंट हो रही है एट द रिस्ट, but in addition there is going to be slight movement at the mid carpal joint as well as the intercarpal joints. ठीक है, so सारी जो movements अब wrist joint पर हो रही होंगी, at the same time movements will be taking place at the mid carpal joint and slight gliding and जो एडजस्टमेंट के लिए रिक्वायर्ड होगी इंटरकार्पल जॉइंट्स पे भी मूवमेंट्स होंगी। सो मूवमेंट्स हैं कौन कौन सी? The movements that occur at the wrist joint are flexion and opposite of that which is extension. ठीक है, flexion ये है, extension ये है। The second set of movements which is occurring here is the abduction. Abduction is also known as the radial deviation क्योंकि radius की तरफ जा रहा है hand आपका, and adduction which is also known as the ulnar deviation. ठीक है, अब ये रोटेटरी मूवमेंट्स है, आप अपने हाथ को जब प्रोनेशन और सुपिनेशन में अपने फोरआर्म को घुमाते हो तो आपकी रिस्ट कैसे मूव होती है। ठीक है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द मूवमेंट्स एट द रिस्ट जॉइंट यू विल टॉक अबाउट द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन एंड फाइनली सर्कमडक्शन। ठीक है जी, देख मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम की आवाज आप लोगों को आ रही है कि मेरे वाइफ में कुछ हुआ? नहीं आ रही। मैं कर रही हूँ कॉल मैम को। मैम आप म्यूटेड हैं। अब can you hear me and see the slides? Yes मैम। Yes मैम। यस मैम। अच्छा, I'm constantly मैंने सारी स्क्रीनशॉट्स ले रही हूँ because लिखा आता है कि somebody has muted me. ठीक है, स्क्रीन आ रही है आपको नजर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब फ्लेक्शन मूवमेंट्स पर ही थे ना, आपने शुक्र है ज्यादा मिस नहीं किया बिकॉज आई थिंक फौरन हमें पता चल गया। राइट, सो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को अगर हम डिटेल में देख लें बेटे, सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन। ठीक है, और ये मूवमेंट है आपकी एक्सटेंशन की। अब इनका रेंज क्या है? फ्लेक्शन का रेंज है अबाउट 85 डिग्रीज, बल्कि मैं तो वैसे सोचती हूँ कई दफ़ा कि आप 90 डिग्रीज तक भी कर सकते हैं, कई लोग ज़्यादा मोबिलिटी होती है, बट जनरली स्पीकिंग अराउंड 85 डिग्रीज is the range of flexion. The major muscle contributors, the muscles which are responsible for this flexion are, कौन से मसल्स हैं आप कर चुके हैं सारे फ्लेक्सर रीजन में? ठीक है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म किया। So the main muscles which are responsible for this are flexor carpi radialis and flexor carpi ulnaris। यानी एक लेटरल साइड से और एक मीडियल साइड से, दोनों, और ये दोनों कहाँ लगे ये आपको इंसर्शंस इनकी पता होनी चाहिए, कार्पल्स पर लगे हुए थे ना। So flexor carpi radialis and flexor carpi ulnaris are the main muscles responsible for flexion at the wrist. But since we know that a number of muscle tendons pass in front of the wrist joint, and we also know that जिस मसल के, जिस जॉइंट के अक्रॉस एक मसल गुजरता है उस पर एक्ट जरूर करता है। So the other muscles which are going to supplement these major muscles are the flexor digitorum superficialis, the flexor digitorum profundus and the palmaris longus। ये उसको supplement करते हैं इन दोनों muscles को। The next opposite movement ये क्या है? Extension. The range of extension is also 85 degrees almost. The major muscles responsible for this are, again, the one and two on the lateral side, extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, and one on the medial side, the extensor carpi ulnaris. In addition, supplemented by all the other extensors which are passing from the posterior aspect of the wrist joint, that is extensor digitorum, extensor indicis, extensor digiti minimi, extensor pollicis, and so on. ठीक है, so ये तो थी flexion extension. The next are abduction and adduction, and let's see what are the other names for that. Abduction is also known as radial deviation,
and adduction is also known as the ulnar deviation क्योंकि ulna की तरफ hand जाता है. The difference here is that since we know that the styloid process of the radius is much longer than the styloid process of ulna, so it is going to obstruct, and therefore abduction has a smaller range, that is only 15 degrees. आप अपना हाथ इस तरफ सिर्फ 15 degrees कर सकते हैं. So abduction or radial deviation has a smaller range of 15 degrees, and the reason is longer styloid process of the radius. The muscle responsible for this are extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, and another muscle which is in the on the opposite side, that is flexor carpi. ठीक है जी, ये गलत हो गया, लाइरिस लिखा आ गया. ठीक है जी, फॉर फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस लिखना था यहाँ पे. ठीक है, सो एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस ब्रीविस एंड दी फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस. ये बेटे इसको डोंट कंसीडर इट अल्नरिस, ये रेडियालिस होगा क्योंकि ये अबडक्शन की बात हम कर रहे हैं. ठीक है, एंड अडक्शन और अल्नर डिविएशन क्या है, इट हैज ग्रेटर रेंज, दैट इज अबाउट 45 डिग्रीज, एंड मसल्स रिस्पांसिबल आर फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस. ठीक है जी, ये मेजर मसल्स हैं एब्डक्शन और एडक्शन के. Circumduction. Now, actually, circumduction, when we say circumduction, we mean it is all-around movements in a joint, and this usually refers to joints which are ball and socket, multi-axial joints. And we've already said that wrist joint is a biaxial joint. So, इस केस में हम circumduction क्या कहते हैं, उसको हम circumduction है, but in actual fact, this refers to the performance of the aforesaid कौन सी movements मैंने बताई हैं, flexion, extension, adduction, abduction. So if when these movements are performed in a certain sequence, that is referred to as the circumduction. For example, आप खुद अभी सब बच्चे करके देखो, अपनी मुट्ठी को बंद करके पहले फ्लेक्स करो, फ्लेक्शन के बाद एब्डक्शन कर सकते हैं, फिर एक्सटेंशन करेंगे और फिर एडक्शन करेंगे, या रिवर्स कर लो, पहले एक्सटेंशन कर लो, फिर एडक्शन कर लो, फिर फ्लेक्शन कर लो. अभी सो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, जब आपने चमचा पकड़ा होता है ना और अपनी उसमें पॉट के अंदर कुकिंग के दौरान चला रहे होते हैं, कुक से आप भी करते होगे, तो ये ऑल अराउंड जो घूमता है ना आपकी रिस्ट, इसको हम सर्कमडक्शन कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे, आपको पता होनी चाहिए कि पोजीशन ऑफ स्टेबिलिटी क्या है. आपका रिस्ट जॉइंट जो है उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी उस वक्त होती है व्हेन द रिस्ट इज माइल्डली एक्सटेंडेड. अब ये देख लीजिए बेटे, ये है एक्सटेंसर सरफेस ऑफ द फोर आर्म, ये ठीक है डॉर्सल सरफेस ऑफ द फोर आर्म है, और ये डॉर्सल सरफेस ऑफ द हैंड है. तो अब आपको ये पता चल रहा है कि ये रिस्ट जॉइंट पे एक्सटेंशन हुई हुई है, ये सीधा एक नहीं पड़ा हुआ. ठीक है ना, सो माइल्ड एक्सटेंशन एट द रिस्ट जॉइंट. सो ये जो पोजीशन मैंने हैंड की, तो इमेज आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज द मोस्ट स्टेबल पोजीशन ऑफ द हैंड व्हेन द रिस्ट इज माइल्डली एक्सटेंडेड. क्या है, 30 डिग्रीज तकरीबन एक्सटेंशन दिखाई हुई है. अब इसकी सिग्निफिकेंस ये है बेटे कि अगर इंजरी हो जाती है हैंड में, और हैंड को आपने देखा होगा प्लास्टर कई दफ़ा किए करना पड़ जाता है कोई फ्रैक्चर्स वगैरह में, तो अगर स्प्लिंटिंग या प्लास्टर करना होता है तो हैंड इज ऑलवेज केप्ट इन दिस पोजीशन. आप देख रहे हो ये, दैट इज रिस्ट स्लाइटली एक्सटेंडेड, द मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट्स फ्लेक्स्ड, द इंटरफिलिंजियल जॉइंट्स एक्सटेंडेड, एंड थंब इन दिस पोजीशन. ठीक है, ये पोजीशन होती है जिसमें हैंड को रख के प्लास्टर करते हैं. ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मैक्सिमम यूज की है पोजीशन ऑफ द हैंड है. ठीक है, तो ये आपको इसलिए मैंने बताया. अब अप्लाइड एनाटॉमी क्या है बेटे, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, वो हम पहले कर चुके हैं, याद है. रिस्ट फ्रैक्चर्स में वी ऑलरेडी डन कोलीज फ्रैक्चर एंड स्मिथ्स फ्रैक्चर. ठीक है, बिकॉज अब रिस्ट जॉइंट में रेडियस और अल्ना ऊपर थे और नीचे कार्पल बोन्स थी, तो जो रेडियस अल्ना से रिलेटेड बातें तो हम रेडियस से रिलेटेड पहले कर चुके हैं. आज हम बताते हैं कि जो कार्पल बोन्स इस फ्रैक्चर में इन्वॉल्व हो सकती हैं, कौन सी, फ्रैक्चर ऑफ द स्केफॉइड होता है, स्पेशली यंग लोगों में ज़्यादा कॉमन है, और एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ ल्यूनेट बोन. ये भी मैकेनिज्म देख रहे हैं आप. When the person falls, when the person falls on the hand, can you please stop talking to each other? When the person falls on hand, ये आप देख रहे हैं, ये fracture line in the scaphoid. Can you please stop talking to each other? This is very rude. So can you see this fracture in the scaphoid? Usually occurs through the narrow portion of the scaphoid. Now, what is special that you
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।